hardware related issue, software related issue, VPN and printer related issue. Active Directory user account log, reset the password, window installation. That's all. Okay. And how much experience you have Two as of year, now? 2 year desktop. Okay. Uh, so Rohit, as a process, you can consider it just an introduction round with us. I will. I just want to know a few of the basic things which will help me to evaluate and which are some basic requirements from customer. Okay. Okay. As a process, I think maybe Priti has told you that after this round, if we move ahead with you, then there will be another two rounds. Okay. Okay. Next round will be with our customer, that is with Yash Technologies. Okay. And if you clear that one, then the final round will be with the end client, that is Monotype. Okay. Okay. So let's see. Even about the next two rounds, they may club into one as well. It's depend on them. Okay. If both Monotype and Yash leads are available, then there may possibility that they will club uh, in one round, or else there will be separate two rounds. It again depends on them. So that is the other part. For particular this round, I just want to know a few things. Uh, you are using any ticketing tool right now? Service Natic Brother. Okay. Can you just give me an example of an incident and a service request? Incident request that happens immediately. Basically, call incident. Service requests which are demanding for and requesting for any kind service request, keyboard and mouse. Okay. Uh, Incident request, window corrupt, below dump error, system is hang, server mhm. crash. Okay. Suppose, for example, I have just joined your organization and you have provided me a new laptops where basic things are already there, like Windows, Outlook, and Office 365 and all. But somehow my Office license is not activated, and I came to you for this. So you will obviously raise a request to the concerned department. So will it be come under incident or will it come under service request? Lessons, service request. It, you have mentioned that service request have a larger duration than incident. And how it come under service request? Yes. Okay. Great. So you have worked on Active Directories? Active Directory is centralized database which keeps all domain information, user groups, computer, which available network, And any kind of access service request. okay. Any idea about SCCM? Yes, CCM System Central Configuration Manager. Hmm, yeah. Have you worked with that before or in your current role? Yes, CCM sir. Hmm, Yes, CCM सर ये DSCP के तरीके काम करता है. DSCP सर्वर काम करता है. एक साथ किसी विंडो 10 है, जैसे 10,000 सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम के लिए किसी भी कोई भी मल्टीपल डिवाइस पे अपडेट, जैसे सिस्टम 10 विंडो 10 चाहे लॉगिन तो उसके बाद 11 करना है, तो एस सी सी एम के थ्रू में हम कर सकते हैं सर. ठीक है. अच्छा, कभी ऐसा कुछ सिचुएशन है हुआ है आपका कि न्यू यूजर्स को आपने लैपटॉप प्रिपेयर करके दिया हो? सॉरी सर.
Have you been in such a situation where you have to prepare new laptops for new users? ओके, कभी भी आप न्यू यूजर्स को आपने डिवाइस प्रोवाइड किया लैपटॉप पर? Yes. जैसे कोई नया एम्प्लॉय अगर यस ज्वाइन यस सर, so let's take a scenario. For example, दो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है ये कि सपोज दो न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन करने वाले हैं, लेट्स से फ्रॉम मंडे, नेक्स्ट मंडे, ठीक है? ओके, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन अभी आज मॉर्निंग में ही आई है एंड अभी टेम्पररी, नॉट टेम्पररी एक्चुअली, आपको बस दो लैपटॉप्स प्रिपेयर करने हैं उनके ज्वाइन करने से पहले। आपके पास आज का और कल का टाइम है, जिसमें से अभी स्टॉक में आपके पास फ्रेश में सिर्फ एक लैपटॉप है और एक लैपटॉप टेम्पररी आपको आपकी एक एक्स एम्प्लॉय का यूज करना है जो अभी रिसेंटली इसी वीक में छोड़ दी है, ठीक है? सो एक आपके पास फ्रेश लैपटॉप है और एक ऑलरेडी एक्स यूजर का लैपटॉप। सो क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे उसको प्रिपेयर करने के लिए फॉर द न्यू यूजर्स हु आर जॉइनिंग ऑन मंडे? तो सर वो जो दूसरा यूज़र लैपटॉप छोड़ के गया उसे फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट करके विंडो इंस्टॉल करेंगे, पीसी से लॉगिन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डोमेन से ज्वाइन करा के वीपीएन में डोमेन से ज्वाइन करा के लॉगिन करा के मैं दे देंगे सिस्टम। ओके, आप जो फॉर्मेट करोगे उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आप टूल यूज करते हो? फॉर्मेट करने के लिए सर पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, वैसे WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सर्वर IVP4 वहाँ से भी सर। ओके, और जो फ्रेश लैपटॉप रहेगा उसको कैसे करोगे? उसमें तो सर उसका भी यही प्रोसेस होगा, उसे फॉर्मेट नहीं करना, उसमें तो डायरेक्ट विंडो इंस्टॉल करना है, फिर अकाउंट से बनाना, उसकी एडमिन अकाउंट से लॉगिन कराना है। Any idea about Intune, Microsoft Intune? इंट्यून सर नहीं आइडिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आउटलुक का आपने मुझे शायद बताया था, .pst और .ost फाइल्स के बारे में आपको आइडिया है? ये सर OST ऑफलाइन स्टोरेज टेबल, PST पर्सनल स्टोरेज टेबल। नॉर्मली कहाँ कैसे यूज होता है, मतलब इसका स्टोरेज कैसे इसको मेंटेन करते हैं? PST का सर बैकअप ले सकते हैं फाइल से, ओपन एक्सचेंज एक्सपोर्ट फाइल, आउटलुक डाटा फाइल, ईमेल, सेलेक्ट द ईमेल आईडी, लोकेशन, अच्छा, और बैकअप। जो बैकअप हम ले रहे हैं, अब मुझे अगर उसका लोकेशन चेंज करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर वहाँ पे ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ से लोकेशन दिखेगा कि कहाँ पे तुम्हें शिफ्ट करना है PST का। ओके, अगर जो PST फाइल है उसको मैं दूसरे लैपटॉप में एक्सेस कर सकता हूँ, तो कॉपी करके अगर मैंने वहाँ पेस्ट किया तो वहाँ पे उसको ओपन कर सकता हूँ? यस सर। अच्छा, एक और सिनेरियो लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे कंप्यूटर में खैर अभी ये नेटवर्क पे रहेगा तो शायद इशू नहीं आएगा, बट लेट्स टॉक अब सब मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ओके, उसमें आ गया वायरस और उसने मेरा OS जो है वो करप्ट कर दिया, मैं अब पीसी में चालू नहीं कर पा। तो क्या ऑप्शन हैं कि मैं अपना डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ? सिस्टम में वायरस आ गया, डाटा के लिए क्या? तो सिस्टम में वायरस आया जिसके कारण मेरा OS भी करप्ट हो गया, ठीक है? मतलब मैं अब एक्चुअली से मैं क्या उसको पीसी चालू नहीं कर पा रहा हूँ। ओके सर,
जैसे एक विंडो करप्ट हो गया तो उसके लिए तो हार्ड डिस्क सर चेंज करनी पड़ेगी, जो सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा तो उसके लिए हार्ड डिस्क। अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल वो सेफ मोड में हो गया, चलो सेव मोड में। फिर तो क्या मैं अपना डेटा बचा सकता हूँ? यस, कैसे? टेंशन मत लो यार, आराम से। आराम से सोच के जवाब दो, और मेरे को टाइम। ओके सर। पानी वानी पी लो। थोड़ा कर लेना, दे देना पानी। तो कॉपी करके सर लेगेसी बायोस। सेफ मोड में पेन ड्राइव वगैरह चल सकती है? यस। अच्छा, और क्या मैं सेफ मोड में एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकता हूँ? यस सर। ऐसा कुछ ऑप्शन है कि सेफ मोड में मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल करके वायरस हटा दिया और वो वापस नॉर्मल इसमें चालू हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है? यस। पक्का? ओके, यस सर, हो सकता है। अच्छा ये बताओ, ब्लू स्क्रीन एरर के बारे में सुना है? किसके सर? ब्लू स्क्रीन एरर यस सर। क्यों आता है वो, और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? ब्लू स्क्रीन सर एरर के लिए तो वैसे तो एरर कोड आता है, नॉर्मली एरर है तो हार्ड डिस्क प्रॉब्लम, रैम इशू, उसके लिए तो सी एच के रन कमांड प्रोग्राम सी एच के डी एस के रन एडमिन सी एच के डी एस की एक कमांड होती है उसके लिए, या जैसे कोई सॉफ्टवेयर ही सर इंस्टॉल किया है तो उसमें भी ब्लू स्क्रीन होती है कि हमारे सिस्टम में जैसे कोई दिक्कत है तो सॉफ्टवेयर की वजह से है तो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करेंगे, और वैसे तो वो एरर कोड देता है सर ब्लू स्क्रीन डॉट। अच्छा, चलो एक लास्ट क्वेश्चन। ओके। सपोज अभी आपके पास एक हाई प्रायोरिटी का एक टिकट है, ओके। ठीक है, जिसमें अराउंड से 10 यूजर्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं उस टिकट के कारण। यस। वो काम नहीं कर पाते, तो काम अड़ा हुआ है, और उसका SLA आपको दिया है सपोज 2 घंटे का, ओके। ठीक है, और आप उस टिकट को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर रहे थे तभी एक कोई VIP आया, आपके पास चल के आया, ओके। अपना लैपटॉप लेके आया, तो उसने आपको बोला यार कि लैपटॉप में कुछ दिक्कत है, बट चेक करो इधर। सो आप बताओ, पहले वो आपको टिकट अटेंड करोगे या वो VIP को अटेंड करोगे? सर टिकट पहले अरेंज करेंगे कि VIP को? हाँ, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक टिकट आया है जहाँ पे 10 यूजर जो है वो इफेक्ट हुए हैं, और वो हाई प्रायोरिटी टिकट है। तो पहले सर यूजर को जो टिकट आया उसको पहले रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद VIP क्रिटिकल टिकट है ना हाई। ठीक है, एक और ऐसा बताओ, सपोज आप अपने लंच ब्रेक में हो, ओके। लंच ब्रेक में आप अपने लॉबी में आपको एक पेन ड्राइव पड़ा है, तो पहली चीज क्या करोगे आप? वो पेन ड्राइव आप अपने पास रख दोगे या आप लोग क्या कर सकते हो उस पेन ड्राइव से? ये एक सिनेरियो बेस्ड ही है, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि what action will you take if you find an unknown pen drive on your office floor? तो हैंड ओवर सर कर देंगे, उसका अपने पास रखने का तो कोई रीजन ही नहीं, अपने पास रखे हम जैसे कोई पेन ड्राइव, उसका हम क्या करेंगे?
चलो ठीक है. Okay, Rohit, I think I have covered my part. ओके. ये बताओ, are you comfortable in English more or Hindi? दोनों सर. क्योंकि अभी ठीक है, मैं इंग्लिश से हिंदी में स्विच हो गया, बट नॉट श्योर कि कस्टमर वैसा स्विच करे, इसलिए मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे. नहीं सर, तो इंग्लिश तो बहुत अच्छी सर नहीं है. यूपी से हैं सर हम, कानपुर से. यूपी वाले भी तो अच्छा बोल देते हैं. सर हम ये नहीं कहते बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, मगर ये है जहाँ तक तो अपनी मानो कोशिश अरे करें. पूरे पूरे इंडिया की वही समस्या है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो वही सर, मेरी कहाँ अच्छी इंग्लिश है, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ. मातृभाषा अपनी तो हिंदी है. मेरी भी कहाँ अच्छी इंग्लिश है, तो बोल बोल के निकल आती बाहर. हाँ बस ये है सर कि थोड़ा. ठीक है. ठीक है रोहित, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप आपको प्रीति कॉल करेंगे. ओके सर.